सुरुवात करूया आपण. वेदांत मार्गदर्शक या संस्थेमार्फत स्टॉक मार्केट अनालिसिस सॉफ्टवेअर, डीमॅट अकाउंट सर्व्हिसेस, ऑल टाइप्स ऑफ इन्शुरन्स, ऑल टाइप्स ऑफ लोन्स अँड ट्रेडिंग इन स्पेशलाइज आयटम, तसंच श्रीमद भगवद्गीता प्रवचन अशा वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटी केल्या जातात. आता आज जे आपण इथं सगळे जमलोय ते हाऊ टू बिल्ड वेल्थ इन अवर लाईफ. जर का आपल्याला वेल्थ बिल्ड करायची असेल तर त्याकरता काय करावं लागतं ते आज मी तुम्हाला इथं सांगणार आहे. फॉर दॅट वी एज्युकेट कॉमन मॅन टू इन्व्हेस्ट अँड ट्रेड इन स्टॉक मार्केट विथ व्हेरी लो रिस्क अँड हाय गेन. स्टॉक मार्केटची जनरली सगळ्यांना भीती वाटते. पीपल आर नॉट रेडी टू इन्व्हेस्ट इन दॅट, ऑर रादर टोटल पॉप्युलेशन जर का आपल्या भारताचं बघितलं त्यातले अर्निंग मेंबर्स जे आहेत त्यातले फक्त 3% लोक आर डायरेक्टली वर्किंग इन स्टॉक मार्केट. अदर 97 people are either using mutual fund, unit link policy, then fixed deposit, recurring deposit, any bond or that type of investment. But they are not directly investing in stock market. So we want to bring common man into stock market and we want to educate them to invest and trade in stock market. For that, first of all, we go through this cash flow quadrant by Robert Kiyosaki, who is American businessman and author of book Rich Dad and Poor Dad. This is a very good book and everybody should read that book to exactly differentiate between asset and liabilities. He has explained that very well in this book. Now he has categorized all people in 4 categories. The first category is employee category, E. Almost 70 to 80% people are from this category. They work from some company or some business owner for 8 hours a day, 6 days a week, for years together. They change the job for some good salary or any benefits, but they retire with the service, same service or some other service. So these people are employees. They are always working for somebody else. Then the second category is S, which is called self-employed. In this category, the people are having some special skills or special services they can render and they can give it to different people or company. So they are their own owner. They don't have to report any boss or any company. These people have privilege in their business as they are self-employed. The example of such people is doctor, lawyer, CA, CS, etc. So these are, they may employ 2 or 3 employees depending upon their workload, and accordingly they keep on working, but still they are not on the top of his quadrant. The third category is B, which is a business owner. These are the big business owner who own different business under one business house, and they employ a number of people in their business, and they use man hours of those person and get their work done. These people have freedom, of course, better freedom than E and S category, but still they have to look into their business.
They have to take meeting with the top management and conduct the necessary activities and conduct the business and keep on growing. So this is also not the top category. As per him, the top category is I, or which is called investor. In this category, the person who is having some good amount of money or some amount of money, he invests into such businesses or companies, and he gets either capital appreciation or other benefits like bonus, rights, dividend, etc. So investor has to do nothing in that company. He don't know even what that company is doing. Some shares are recommended to him by some ways, and he invests into those business accordingly. Once the shares are appreciated, he can sell those shares and enjoy the gap between sell and buy price. So this is called investor category. And in as far as this Robert Kiyosaki is concerned, this I category is very important. Even if you are working in E, S or B category, still you can invest. You can be an investor. तो आप इसमें पैसा लगा सकते हो. आप जो महीना कमाते हो उसका कोई पोर्शन यू सेव and that you can invest into share market. So ये कैटेगरी में आप जब तक जाते नहीं हो, यू आर नॉट टोटली फाइनेंशियली फ्री. तो ये कैटेगरी में यू डोंट हैव टू वर्क with anybody, you don't have any office, you don't have any timings, you are free bird. And जो इन्वेस्टमेंट आपने की है उसके ऊपर you get good returns according to company. Now how to select those companies, कौन से कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से में नहीं करना है, ये हम आगे देखेंगे. Now for becoming investor, buy shares of a company as per our software for getting capital appreciation. ये आप कर सकते हैं. Then secondly, invest in derivative contracts as per our software. Thirdly, invest in commodity and currency as per our software. These are four major segments in Indian stock market. First is equity shares. Second is derivative, in which future and options are included. Then third segment is commodity segment, and fourth segment is currency segment. We can invest in any of these category and get good returns out of our investment with low risk and high gain formula. Then विजन ऑफ स्टॉक मार्केट, वॉरेन बफेट, इनका नाम तो आप सब लोगों ने सुना होगा. ये इनका जो कोट है वो पहले मैं पढ़ता हूँ. मनी विदाउट फ्री टाइम इज वर्थलेस. आपके पास बहुत पैसा है बट यू डोंट हैव एनी फ्री टाइम, तो आप उस पैसे का कुछ लाभ उठा नहीं सकते. बस आप पैसा कमा रहे हैं और आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, दैट्स इट. सो इट इज वर्थलेस. सेकंड थिंग, फ्री टाइम विदाउट मनी इज पॉइंटलेस. आपके पास फ्री टाइम बहुत है मगर पैसा नहीं है, मनी नहीं है, तो भी आप वो फ्री टाइम का कुछ अच्छा इस्तेमाल नहीं कर सकते. बिकॉज टू एंजॉय फ्री टाइम यू नीड मनी, एंड इफ यू अर्न मनी यू नीड फ्री टाइम टू एंजॉय दैट मनी. सो ये कोट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसके ऊपर ही हमारा ये पूरा आगे का जो है निर्भर है. We should have money and free time both at the same time. So want to know how to earn and still be free. ये सबसे important है. Earning करना है मगर we have to be free. तो ये new job, if you are not into stock market, you can take this as a new job, and we will train you for this particular aspect, and accordingly you can be free. And same time you can have good amount of money. So Warren Edward Buffett
born August 30, 1930, is an American investor, business tycoon, philanthropist, and the chairman and CEO of Berkshire Hathaway. He is considered one of the most successful investor in the world and has a net worth of over US dollar 78.9 billion. शायद ये जो रकम है ये हम कागज पे लिख भी नहीं सकते, बिकॉज 78.9 बिलियन को यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 75 तो उसके रुपीस बन जाएंगे. तो अगर वो फिगर करेंगे ना तो हम नहीं लिख पाएंगे शायद पेपर पे, इतनी उनकी नेटवर्थ है. As per the August 2020, making him the world's 7th wealthiest person. उन्होंने कैसा ये अचीव किया, that पहले हम वो देखते हैं. At the age of 13, Buffett was running his own business as a paper boy and selling his own horse racing tip sheet. क्या करते थे वो? पेपर बॉय थे. बोले तो अपने यहाँ जो पेपर लाके देने वाला जो लड़का रहता है वो काम वो करते थे. ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही अमीर फैमिली से थे और वहां से उन्होंने ये पूरी वेल्थ क्रिएट की है. नहीं, तो उन्होंने क्या किया? He began accumulating stock in the early 60s and by 65 he had assumed control of the company. वो कंपनी उन्होंने पूरी एक्वायर की, उसके वो सीईओ बन गए. In June 2006, Buffett made an announcement that he would be giving his entire fortune away to charity. He says derivatives are mass destruction tools. वो derivatives में कभी बिलीव नहीं करते. अभी वो 90 साल के हैं फिर भी वो काम करते हैं. उनके कार को ड्राइवर नहीं है, उनके पास मोबाइल फोन नहीं है, वो सिर्फ ईमेल यूज करते हैं. उनके जो अभी कंपनीज है उनके सीईओ को वो ईमेल भेजते हैं, उनकी एक मीटिंग साल में करते हैं, उनको वो पूरा क्या क्या करने का है, व्हाट आर द टारगेट्स, वो सब एक्सप्लेन करते हैं और उसका वो सिर्फ रिपोर्ट लेते हैं, वो खुद उसमें कुछ काम नहीं करते. और चैरिटी अगर बोलेंगे तो उन्होंने जो डोनेशन दिया है that is the largest single handed donation in this world. उतना डोनेशन आज तक किसी ने भी नहीं दिया है. तो इतना पैसा उन्होंने कमाया है. कैसे कमाया? तो शेयर्स लेते रहे एक एक कंपनी को उन्होंने एक्वायर करते गए. क्या है, किसी भी कंपनी का 51% शेयर अगर आप परचेस करते हो then you become owner of that company, क्योंकि आपके पास 50% से ज्यादा उसका इक्विटी होल्डिंग होता है. तो दैट वाज हिज प्रिंसिपल. तो सेम प्रिंसिपल हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू हम आपको बता सकते हैं एंड वी कैन आल्सो अचीव द सेम रिजल्ट. अभी उसके लिए थोड़ा टेक्निकल का थोड़ा समझ लेते हैं. डाउ थ्योरी, 3 मोमेंट्स ऑफ मार्केट. डाउ ने बताया है देयर आर 3 मोमेंट्स, अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड साइडवेज. द एवरेज डिस्काउंट्स एवरीथिंग. तो कोई भी शेयर की जो क्लोज प्राइस होती है, if you derive an average of that close price and if you study that average, then the direction of average can tell you how market will move. So same principle, this is the basic principle of stock market. There are n number of other indicators, अभी तो hundreds के ऊपर है. फिर भी हमारे सॉफ्टवेयर में हम सिर्फ और सिर्फ मूविंग एवरेज का बेस इस्तेमाल करते हैं और मूविंग एवरेज से जो इंडिकेशन इंडिकेट होता है उसके हिसाब से यू गेट वंडरफुल रिजल्ट. अभी मार्केट में बुल फेज और बेयर फेज ये 2 ट्रेंड रहते हैं. तो इसके लिए 2 एवरेजेस मस्ट कंफर्म ईच अदर और वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड. जब भी बाय कॉल आता है तभी वॉल्यूम ऑन दैट डे शुड बी ग्रेटर देन द प्रीवियस डे, देन इट इज कंफर्म. तो ये सब हमारे सॉफ्टवेयर में ऑटोमेट किया है. तो आवर सॉफ्टवेयर इज बेस्ड ऑन डाउ थ्योरी. एज पर डाउ थ्योरी, इफ 2 एवरेजेस आर गोइंग अप और डाउन, आवर सॉफ्टवेयर गिव्स यू बेस्ट बाय और बेस्ट सेल सिग्नल. So if you just follow these signals
and invest in stock market to earn profit. आप इससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं. No need to do any technical analysis or fundamental analysis. आपको कुछ नहीं करना. It is ready food. बस आपको खाली जो खाना आपके सामने आया है उसको खाना है. आपने वो पकाया कैसा है, सब्जी कहाँ से लाई है, कौन से मसाले इसमें यूज किए हैं, कुछ देखने की जरूरत नहीं है. बस सिर्फ खाने का काम करना है. So just follow the signal and make huge profits. अब ये हमारा सॉफ्टवेयर का एक पिक्चर है. आगे मैं आपको ये सॉफ्टवेयर भी बताने वाला हूँ. Then our other products, share analysis software, F&O analysis software, commodity analysis software, currency analysis software और intraday live buy sell signal software. ये हमारे टोटल प्रोडक्ट है. अभी जो मेन चीज अभी मैं आपको बताने वाला हूँ वो बुल फेज और बियर फेज, इसका हमने अभी जिक्र किया. सो ये जो 1 2 3 4 5 ये जो दिखाई दे रही है, दिस इज बुल फेज एंड दिस ए बी सी इज बेयर फेज. करंटली मार्केट इज इन बुल फेज और ये 4 जो है ये खत्म होके ये वेव 5 ये चालू हो गया है. वेव 5 बहुत ऊपर तक जाने वाला है. उसका काउंटिंग भी हम कर रहे हैं. उसके लिए हम एक मीटिंग कंडक्ट करते हैं और वो मीटिंग के जरिए वी एनालाइज द स्टॉक मार्केट. उसकी जानकारी हम आपको बाद में देंगे. तो बेसिकली वी आर इनटू दिस 4 to 5. ये जो लाइन है इसमें है. अब ये 4 to 5 जो लाइन है इसका सब डिवीजन अगर हम करेंगे तो 1 2 3 4 और 5 इसके फिर 5 सेक्शन है. मगर वो जो आप हमेशा मैं करता हूँ and I give that prediction or my conclusion to our group members. Zoom पे ही उसकी मीटिंग होती है डेली क्वार्टर टू 9 to 9:30. ये पौना घंटा डेली मीटिंग होती है मंडे टू फ्राइडे. तो वो मीटिंग अटेंड करके भी आप इसका नॉलेज ले सकते हैं. तो ये हमने इसको अर्न 1 करोड़ फ्रॉम स्टॉक मार्केट, ये इसका हमने लोगो बनाया है, स्लोगन बनाया है. बाय एंड ऑफ 5 जो लोग वो मीटिंग में है वो सब लोग हम करोड़पति होने वाले हैं. ऐसा हमारा सबका टारगेट है जूम मीटिंग ग्रुप का. तो इसके अलावा हम प्रॉफिट मार्ट की फ्रेंचाइजी है, उसके साथ हम ये सब सेगमेंट में काम करते हैं. डिपॉजिटरी बोले तो डीमैट अकाउंट भी आपको देते हैं. इवन वही वेल्थ मैनेजमेंट में भी हम काम करते हैं. तो इसमें भी हम आपकी मदद कर सकते हैं. और ये है कॉन्टैक्ट अस. myself नितिन श्रीपाद जोशी, प्रोप्राइटर वेदांत मार्गदर्शक. सदाशिवपेट माड़ेवाले कॉलोनी में हमारा ऑफिस है और ये हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट एड्रेस है. तो इस प्रकार ये हमारा टोटल प्रोग्राम है. अभी मैं आपको सॉफ्टवेयर से एक्चुअली इंडिकेशन कैसे आते हैं और कैसे हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैं दिखाता हूँ. अब ये निफ्टी का चार्ट है. तो इसमें अगर हम डेटा व्यू करेंगे तो निफ्टी को इधर बाय सिग्नल आया था 11,908 4 नवंबर को. एट दैट टाइम इसने बाय बोला. किसी को भी ऐसा नहीं लगा था कि निफ्टी 12,938 तक जाएगा, इतना ऊपर जाएगा. ये किसी का भी अंदाज नहीं था. मगर हमारे सॉफ्टवेयर ने मूविंग एवरेज के जरिए ये प्रिडिक्ट किया और वहां से कंटिन्यूअस वो अब जा रहा है. आज पहले दिन उसको रिएक्शन आया है, अदरवाइज ये पूरे 8-9 दिन वो ऊपर ही जा रहा था. तो उसने टोटल प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 1030 विच इज 8.6%. अभी 1030 फ्यूचर को आप कन्वर्ट करोगे तो इसका लॉट साइज 75 होता है. पर शेयर ये प्रॉफिट है. तो वो 75 इंटू 1030 किया तो 75,000 रुपीज से ऊपर इसका प्रॉफिट हो जाता है. एंड मार्जिन फॉर दैट इज अराउंड 1.54 लाख. तो 1.5 लाख के मार्जिन पे 75,000 का प्रॉफिट इज ऑलमोस्ट 50%. ये है फ्यूचर का कमाल. स्टॉक बेसिस पे आप करोगे तो आपको उससे कम मिलेगा, मगर उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट मिल सकता है. तो
ये करने के लिए इसमें क्या होता है, डेली यू गेट बाय एंड सेल लिस्ट। अभी समझो ये 5 डे में बाय में, कल तो कोई शेयर नहीं था, ये बेस्ट बाय में समझो एशियन पेंट था, तो ये देखिए एशियन पेंट में ये 5 डे में ट्रेंड में बाय ऐसा लिख के आया है। मैं जो अभी आपको रेडी फूड बोला, सिर्फ खाने का है आपने, तो ये बाय कॉल क्यों आया है, इसके पीछे क्या कैलकुलेशन है, आपको नहीं देखना है। आपने आम खाना है, पेड़ नहीं गिनना है, तो इसने बाय बोला है तो ये स्टॉप लॉस बोला है, और ये जो ऊपर क्लोज है ये रिकमेंडेड प्राइस है। तो इसके हिसाब से आपने पोजीशन लेना है और एशियन पेंट को होल्ड करना है। कब तक होल्ड करना है, जब तक ये 5 डे में ट्रेंड में आपको सेल कॉल नहीं आता। तो जिस दिन वो सेल कॉल आएगा आपने उसको बेच देने का है। सो सिंपल। अभी बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए शुरू करने के लिए। मैं आपको बोलता हूँ आप 5,000 रुपए से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो 5,000 रुपीज पहले स्पेयर कीजिए, बाद में जैसा जैसा आपके पास पैसा आएगा, 500 रुपया, 1,000 रुपया आपके अकाउंट में, यू कीप ऑन एडिंग, और उसका एडिशनल शेयर आप लेते जाइए। एंड सेकंड थिंग, जो इसका प्रॉफिट आएगा वो भी अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो एक्सपोनेंशियल ग्रो होता जाएगा, और कुछ साल तक, 3 साल 4 साल तक उसको अगर आप वैसा ही री इन्वेस्ट मोड में रन करेंगे तो अच्छा खासा सम आपके पास बन जाएगा। तो इसके हिसाब से आप उसमें काम कर सकते हैं। इसका डिटेल डेमो या कोई और जानकारी अगर आप चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम आपको इसकी पूरी जानकारी और डिटेल डेमो दे सकते हैं।